Hello everyone, my name is Radhika Singh and I am second year computer science undergraduate. So, am I audible to you all? Yes. Yes. Okay. So, as you all know, AMU Robo Club organizes class on various topics every year, but in offline mode. But now, due to COVID-19, we are going to organize them in online mode. There are various topics that is organized by AMU Robo Club classes. Like in programming section, we are having C, Python, C++, uh, and in web development field, we are having HTML, CSS, basic Bootstrap, and Your also voice some is not backend part. clear. Okay. Is it only for you or B, your voice is audible. okay, okay. अभिषेक शायद तुम्हारी Now, now okay. प्रॉब्लम है check your net yeah. So in programming section I have told you we are covering C, C++, Python, and also in C++ we are going to discuss about object oriented programming, and in mechanical field we are having SolidWorks workshops and MATLABs, PCB designing workshops and many more things. So सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है मेरे बुक क्लब की क्लासेस and will be very benefit for you all. So first of all जो पहली क्लास है ये तो सबके लिए मतलब फ्री है मतलब anyone can join, but after onwards we are going to organize these classes only for the registered students. So please register yourself in the AMU Robo Club website, and also those who have registered, please join the classroom that we have made so that you can get the notification and invitation link on time in that classroom. And also, please, those who have not registered, register yourself in the AMU Robo Club websites. And also one more thing, many of you asked questions about कि हम लोग AMU Robo Club में projects में वर्क कर पाएंगे या नहीं, हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं. सो द वेट इज गोना बी ओवर सून. हम लोग अपॉर्चुनिटी देंगे क्लब प्रोजेक्ट्स में जो रोबोटिक्स से रिलेटेड क्लब प्रोजेक्ट्स हैं उन आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट AMU Robo Club and its classes. And one more thing, हाँ कि लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आती है इन एनी फील्ड, पर्सनली भी कोई क्वेरी पूछनी है और AMU Robo Club से या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपकी प्रोग्रामिंग या फिर वेब डेवलपमेंट, देन प्लीज कॉन्टेक्ट बी इन कॉन्टेक्ट विद योर सीनियर्स. वी आर अवेलेबल विद यू एंड फॉर एनी टाइम. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, not with MATLAB, and I'm going to explain you why we are starting with programming language. एक second मैं अपनी screen present So we are starting with programming language. Why not I'll jump on MATLAB or Solid Workshop or anything else or in web development field. First of all, to learn anything, these topics, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाएंगे वहाँ पे अगर आप सिमुलेशन में वर्क करेंगे या फिर किसी मतलब MATLAB में भी डिजाइनिंग या आर्डिनो में, then you should know the basics of any programming language. So we are starting with programming language. And so what is programming language? I can communicate with you because there is a common language between me and you, which is English or Hindi. But if I want to communicate with the computer, then how can I communicate with the computer? Because there is no common language between us. So
the term come here is the programming language. Programming language is a computer language that is used to is used by the developers. Hello, hello. Your voice is not clear. Oh. Mass. Radhika, it is clear. Go on. Okay. Yes, it is Okay, clear. okay, okay, okay. It is a request from all the students. Do not hamper the classes like this. Okay. You can share your messages on chat. Okay. So, programming language is simply a language or a code which is developed by the developers to communicate with the computer. Okay, so these there are two types of programming languages: low-level languages and high-level programming languages. First of all, I would like to tell you that machine can understand the code or understand the language of 0 and 1. That is binary code. Okay, but we don't know the language of zeros and ones. So we need to write some code in that form which can be converted into 0 and 1. ठीक है. So दो तरीके की होती है, low level and high level. Low level में क्या होता है कि it is in the form of zeros and ones. You need to convert it into zeros and ones. So it is easily understood by the computer. Whereas high level language is users friendly language. मतलब वो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगी. We can easily write, read and maintain that language. But we need to convert this language into some other form. Other मतलब in zeros and one form. So for that we had something new thing which I am going to tell you. So first of all, low level language जो होती हैं वो आराम से समझ में आ जाती है, इसलिए वो बहुत फास्ट होती हैं. बट हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बीच की एक मिडिल वेयर लैंग्वेज में. देन दैट मिडिल वेयर लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू जीरोस एंड वन. तो इसमें एक टाइम लग रहा है. सो हाई लेवल लैंग्वेज आर टाइम टेकिंग इन कंपैरिजन टू द लो लेवल लैंग्वेज. ओके, सो हाउ कैन वी कन्वर्ट द हाई level language into that language, into zeros and one form? So we have interpreter or compiler. These two terms we are have. So what is compiler and interpreter? These compiler and interpreter converts the high level language into machine code. But both of them convert the high level language into machine code. Then what's the difference between them? क्या ये दोनों एक जैसे ही है? No, there is a difference. Compiler scans the code. अगर आपने कोड लिखा है तो जो कंपाइलर है उस पूरे कोड को एक बार में स्कैन करेगा, ठीक है. लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो एक लाइन को एक बार देखेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसमें अगर कोई एरर है तो वो वहीं पे स्टॉप कर देगा. दिस इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. बट कंपाइलर और इंटरप्रेटर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. नो, आपने पाइथन सुना होगा. पाइथन लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड, बट द लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस ये सब कंपाइल्ड होती हैं. ओके, एंड ऑल्सो क्या कहते हैं, ये जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है कंपाइलर का वो बहुत अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू इंटरप्रेटर. दैट्स व्हाई द रनिंग टाइम और द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ सी लैंग्वेज इज much less than the Python. This is all about the compiler and interpreter. Like interpreter में हमारा Python, Ruby और MATLAB ये सब आता है, compiler में ये आता है. Okay, and also compiler क्या करता है कि आपका जो source code, जो main code आपने लिखा है उसको एक object code में convert करता है. Then that object code is converted into zeros and one form. लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता. इंटरप्रेटर में कोई ऑब्जेक्ट कोड नहीं होता, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है जीरोस एंड वन में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर कि क्या क्या होता है ये. ऑल्सो व्हाट इज नाउ व्हाई वी स्टार्ट विद सी प्रोग्रामिंग, व्हाई डोंट विद सी प्लस प्लस और जावा? फर्स्ट ऑफ ऑल सी इज अ वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, बहुत फ्लेक्सिबल है.
और बहुत एक प्रोसीजर होती है, बहुत प्रोसीजरल है ये, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। और जो सी का एग्जीक्यूशन टाइम है, रनिंग टाइम है, वो भी बहुत कम है ऑल लैंग्वेजेस से। तो पहले अगर आपको सी आता है तो आप कोई भी लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं। लाइक C++ इज वेरी मच सिमिलर टू सी। सो सी इज अ जनरल पर्पस प्रोसीजरल एंड वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल सी तो ठीक है, लेकिन सी की कुछ तो बताइए कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सी। सी से क्या क्या हुआ है कि सी हम पढ़ने के लिए सिर्फ इसीलिए पढ़े क्योंकि वो आगे बहुत सारी लैंग्वेजेस में मतलब इजी हो जाएगा उससे? नो। जो पाइथन का इंटरप्रेटर जो मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि जो इंटरप्रेटर है वो पाइथन का कोड उसमें रन होता है। तो जो इंटरप्रेटर है वो भी सी से बनाया गया है। इट इज कोडेड इन सी। यू कैन गैस इट कि अगर दूसरा जो मतलब आपकी लैंग्वेज है इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सी। वो एक्चुअली में मतलब पेरेंट आपका सी भी हुआ, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो गूगल फाइल सिस्टम है और गूगल का क्रोम ब्राउजर है वो भी मेनली आपका सी में लिखा गया है, ठीक है। और आप जब डेटाबेसेस के बारे में पढ़ेंगे अगर तो MySQL हुआ तो और भी हुए, तो ये सब जो है इनका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो सी में लिखा गया है, ठीक है। इवन द मोजिला फायरफॉक्स ये जो है और तो ये भी आपका सी में लिखा गया है, ठीक है। इवन जो गेमिंग और एनिमेशन में जो एप्लीकेशंस होते हैं इसके लिए गेमिंग के लिए और एनिमेशन के लिए वो भी सी में ही मतलब कोड किया जाता है। So this is all about C and why we should learn C. Now, this is the structure of C. First, we have included stdio.h file. What is this? Hashtag include stdio. ये क्या कर रहा है? ये हेडर फाइल है। .h जो एक्सटेंशन होता है कहीं पर भी, तो इट इज फॉर द हेडर फाइल, ठीक है। इधर क्या कर रहे हैं हम? एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को अपने सी में इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि आपने अगर पहले कभी सी का स्ट्रक्चर देखा हो तो उसमें अंदर स्कैनएफ स्टेटमेंट होता है, प्रिंटएफ स्टेटमेंट होता है और वेरिएबल इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है। तो मतलब हमारा जो कंपाइलर स्क्रिप्ट को रन करेगा इस कोड को, तो उसको पता कैसे चलेगा ये सब है क्या। तो इसलिए जो सी है उसने एक हेडर फाइल बनाई है, उसके अंदर ये प्रिंटएफ के, स्कैनएफ के, इसके अंदर सारी फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड है। बट ओनली वी आर डूइंग हियर कि हम यहाँ पर इन फंक्शंस को ले रहे हैं, यहाँ पे मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, एक तरीके से इंक्लूड कर रहे हैं अपने कोड में। दिस इज ऑल अबाउट द stdio.h फाइल, ठीक है। दे आर मैनी मोर हेडर फाइल्स। अगर आपको कुछ मैथ के फंक्शंस हैं, जैसे कि आपने पावर सुना हो, पावर इज यूज्ड टू फाइंड द पावर, तो आपको अगर किसी की पावर निकालनी है देन यू कैन यूज द पावर फंक्शन, ठीक है। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल निकालना है, लॉग निकालना है, तो आप इनको कोड थोड़ी लिखने बैठोगे। यू आर गोइंग टू इम्पोर्ट द math.h लाइब्रेरी, ठीक है। तो इधर हम लोग क्या कर देंगे, हैशटैग इंक्लूड math.h भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे भी और बहुत सारी होती है लाइक स्टैंडर्ड लिब, stdlib, स्टैंडर्ड लिब.h, string.h, ठीक है। तो ये सब आ जाता है इसमें। Now next is integer main. What is this doing? Integer आप अभी के लिए समझ लो कि ये एक फंक्शन, मतलब ये है तो एक फंक्शन ही। Integer main, then we are using the braces. ये एक फंक्शन है, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन क्या कर रहा है, लाइक हमारा जो कंपाइलर है जो वो पहली लाइन से दूसरी लाइन में आएगा तो उसको पता चलेगा कि मैं पहले कौन सी लाइन चलाऊँ। मैं तो कहूँगी कि नहीं, मैं तो इस लाइन पे जो कोड है पहले मैं उस पर आऊँगी, कंपाइलर ये बोलेगा। तो वो क्या करता है, वो बस ये देखता है कि अच्छा यहाँ पर मेन फंक्शन यहाँ पर है, तो इसके अंदर जो मेन कंटेंट है मुझे उसको पहले मतलब उसको चलाना है, ठीक है। तो जो मेन फंक्शन है इट हेल्प्स द कंपाइलर टू नो वेयर टू स्टार्ट कंपाइलिंग द प्रोग्राम, ठीक है। सो इट्स अ फंक्शन इंटीजर मेन। तो यहाँ पे हम मेन बॉडी में अपना पूरा कोड लिखते हैं, देन वी रिटर्न 0। जैसे कि अभी आपको रिटर्न 0 समझ नहीं आ रहा होगा और यहाँ पे हम लोग इंटीजर यूज कर रहे हैं। अभी के लिए इसको इतना ही समझिए कि ये एक बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है। और ये फंक्शन बॉडी तो है ही है, ठीक है, कि फंक्शन कॉल हो रहा है,
ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा एडवांस में, क्योंकि अभी रिटर्न वगैरह थोड़ा आप लोग डिस्टेबल नहीं होगा. दिस इज ऑल अबाउट मेन बॉडी. ठीक है, नेक्स्ट टोकन्स. व्हाट आर टोकन्स इन सी? लाइक जैसे आप लोग, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग के अंदर सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. ठीक है, ऐसे ही एक सी प्रोग्राम में जो स्मॉलेस्ट वर्ड या स्मॉलेस्ट एनी सिचुएशन, एनी सिंबल और एनीथिंग, if we are adding even space, then all these are called tokens. ठीक है, now there are 6 types of tokens: keywords, operator, string, constant, special characters and identifiers. So what are these? जैसे कि कीवर्ड है, इसके तो मतलब नेम से पता चलता है कि आई एम अ कीवर्ड, so don't change me and don't use me in your own language, because I'm already I'm a keyword. Okay, so these are the keywords जो सी में अपनी लाइब्रेरी में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच जो मैंने हेडर फाइल बताई थी, उसमें इन सब की ऑलरेडी अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है हर एक का. तो वी कांट यूज, हम लोग अपने नाम से कोई वेरिएबल दे रहे हैं तो हम इन नाम से वेरिएबल नहीं डिफाइन कर सकते. लाइक ब्रेक हुआ, आप पढ़ेंगे जब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए कि अगर हमें लूप को एंड करना है, फिर रोकना है, देन वी यूज ब्रेक. ठीक है, इफ एल्स होता है. ठीक है, डिफॉल्ट, गो टू, कॉन्स्ट हुआ, आपको अगर कोई कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाना है जिसकी वैल्यू आप पूरे कोड में कहीं भी चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पर हम कॉन्स्ट यूज करेंगे. ठीक है, ऐसे ही स्ट्रक्चर हुआ, बहुत सारी चीजें होंगी. ठीक है, ये सब आपका कीवर्ड में आ जाता है. नाउ सेकंड इज द ऑपरेटर. ऑपरेटर तो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है, प्लस माइनस, दीज ऑल आर ऑपरेटर्स, बट इन सी वी आर हैविंग मच मोर ऑपरेटर्स. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स: यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर. ये तो नेम से पता चल रहा है कि यूनरी है, तो वो एक ही, उसके लिए एक ही ऑपरेंड चाहिए होगा. ठीक है, वो एक ही ऑपरेंड पे वर्क करेगा. और ये बाइनरी है, बाइनरी में 2 ऑपरेंड चाहिए मिनिमम, टर्नरी में 3. तो यूनरी में लाइक प्लस प्लस हुआ, माइनस हुआ, और ये सब है. अरिथमेटिक अलग, रिलेशनल अलग. रिलेशनल में वही ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू आपका कंपैरिजन के लिए होता है कि अगर कोई ए नंबर है, कोई बी नंबर है, क्या क्या ए डबल इक्वल्स टू अगर हम बी करते हैं तो इट रिटर्न्स अ बूलियन. बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है कि अगर सपोज मैंने ए में भी 9 ले लिया और बी में भी 9 ले लिया, अगर मैं करती हूँ ए डबल इक्वल्स टू बी, देन इट शुड रिटर्न ट्रू. ठीक है, और ये लॉजिकल, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं. अब इस डबल इक्वल्स टू में और सिंगल इक्वल्स टू में बहुत डिफरेंस है. डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन के लिए यूज होता है. ठीक है, और ये सिंगल इक्वल्स टू असाइनमेंट के लिए. मुझे असाइन करनी है अपने वेरिएबल ए को 9 वैल्यू, देन आई विल राइट इक्वल्स टू 9. ठीक है, एंड दिस इज टर्नरी ऑपरेटर. क्वेश्चन पोलर. जब आप लोग इफ एल्स पढ़ेंगे तब मतलब पता चलेगा इसका. एक सेकेंड. Now, identifiers. What are identifiers? Identifiers, अब ये चीज आई है कुछ जिसमें हम काम कर सकते हैं एक्चुअली में, वो सब तो डिफाइंड वाली चीजें आ गई. आइडेंटिफायर्स आर लाइक यूजर डिफाइंड. हम लोग अगर किसी वेरिएबल को देते हैं, किसी फंक्शन को नेम देते हैं, then these all are identifiers. Okay? Now constant. constant में क्या होती है, अगर सपोज मैंने इस तरीके से अपना वेरिएबल लिखा इंटीजर टाइप का, समझ में नहीं आएगा जब आपको डेटा टाइप्स पढ़ाएंगे. Madhuri gonna tell you what are data types. तो उसमें लाइक इंटीजर x इक्वल्स टू 9. अब इधर सारी टर्म्स आ गई. देखो इधर हम लोग वेरिएबल लिए x, इधर हमने डेटा टाइप क्या लिया उसका इंटीजर, इक्वल्स टू इधर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर ले लिया. ठीक है, तो 3 टर्म्स आ गए हमारे. इधर हमने बस एक्स्ट्रा कॉन्स्ट यूज कर लिया. अब हमने अगर किसी भी टर्म को इस तरीके से डिफाइन किया है, देन वी कांट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ x इन द कोड. लाइक अगर मैं नीचे अपने कोड में लिख दूं फिर से x इज इक्वल्स टू 5, देन वी कांट डू दैट. व्हाई? बिकॉज हमने इसको डिक्लेयर करते वक्त ही इसके आगे कॉन्स्ट वर्ड यूज कर दिया. ठीक है, नाउ स्पेशल कैरेक्टर्स.
स्पेशल कैरेक्टर्स तो पहले ही आपको सिंटेक्स में दिख गया होगा, जो हमने ये वाले ब्रेसेस यूज किए थे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। ओके, तो ये चीज हो गई। नाउ स्क्वायर ब्रेसेस जो होता है, स्क्वायर ब्रेसेस हम डे में यूज करते हैं, और ये जो सिंटेक्स होता है कि हम लोग अगर कोई भी फंक्शन में लाइन है उसको क्लोज हम हमेशा एंड करेंगे इस वाले ऑपरेटर, ठीक है। और ये स्ट्रिंग हुआ, स्ट्रिंग में कोई भी स्ट्रिंग टाइप, मतलब स्ट्रिंग इज, वैसे तो स्ट्रिंग इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ये अपने में एक अलग है जिसको हम आगे एज एक अलग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज डेटा टाइप्स इन सी। डेटा टाइप्स क्या होता है? लाइक वही मैं हर चीज कंपाइलर से जोड़ रही हूँ, लाइक और वो चीज है, मतलब कंपाइलर अगर देखेगा उसको कोड में मिलेगा, जैसे वो मेन बॉडी में आया, वो देखेगा इंटीजर x इज इक्वल टू 9, तो वो कहेगा ओ इट्स अ टाइप ऑफ इंटीजर। तो वो क्या करेगा, मेमोरी में जाएगा अपनी हमारे लैपटॉप कंप्यूटर की, वहां पर वो इंटीजर टाइप का मतलब क्या, इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट्स मेमोरी लेता है, ठीक है। तो वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट कर देगा उस वेरिएबल के लिए। कंपाइलर को देखा कि वहां पर कैरेक्टर है, कैरेक्टर टाइप है, तो वो क्या करेगा, उसको पता है कि कैरेक्टर अगर AR लिखा हुआ है तो मुझे 1 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट करनी है अपने मेमोरी में। ओके, तो मतलब एवरी वेरिएबल इन सी हैज डेटा टाइप। हम लोग बिना डेटा टाइप के कोई वेरिएबल लिख नहीं सकते, क्योंकि कंपाइलर को पता कैसे चलेगा वो किस टाइप का है, वो कि कैसे मेमोरी एलोकेट करेगा बिना उसके। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। वैसे मेमोरी में एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग पहले डिक्लेरेशन करते हैं जैसे हम लोग वेरिएबल को, तो उतनी ही बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हो जाती है। फिर जैसे ही अगर हमने उसको इक्वल टू 9 किया, व्हाटएवर जो हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू, हम उस मेमोरी में जाके यूज अप हो जाती है, मतलब असाइन हो जाती है उसको वैल्यू। नाउ डेटा टाइप्स इन सी, there are mainly 3 types of data types: user defined, built-in and derived। तो यूजर डिफाइंड में मतलब हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर हुआ, यूनियन हुआ, इनम हुआ। बिल्ट इन में जितने भी अभी आप लोगों ने सुने होंगे ज्यादा, इंटीजर कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, बूलियन, वॉइड, वाइड कैरेक्टर एंड ऑल दैट। ड्राइव्ड में एरे हुआ, फंक्शन हुआ, पॉइंटर्स हुआ, ये सब होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर यूनियन है ये अपने में एक अलग टॉपिक है जो पूरी क्लास में जाता है, और ये जो बिल्ट इन है ये बेसिक है। एक्चुअली मैं स्ट्रक्चर थोड़ा बता दूँ, इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने में। लाइक मैंने अगर सपोज इंटीजर लिया, ठीक है, कोई इंटीजर x लिया, इक्वल टू 9 कर दिया, वो सिंपली एक मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ इंटीजर टाइप का, ठीक है। लेकिन सपोज मुझे 2-3 वेरिएबल डिफरेंट टाइप्स के एक साथ डिक्लेयर करना है और उसको एक अलग उसमें रखना है वेरिएबल में। लाइक मुझे एक इंटीजर टाइप का अमाउंट चाहिए और कैरेक्टर टाइप का मुझे नेम चाहिए, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो पूरा है ये एक एज अ मुझे खुद डेटा टाइप मिल जाए, कि अगर मैं उसको डिक्लेयर करूँ तो ये दोनों चीज आ जाए, तो उसके लिए स्ट्रक्चर यूज करते हैं। आई नो बहुत कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नाउ मार्क्स, यू कैन कंटिन्यू विद डेटा टाइप्स। Okay, Radhika. Thank you. I'll be presenting my screen. बता देना अगर visible हो जाए, और मैं audible सही हूँ, ये चीज़ भी है ना। Am I audible now clearly? यस हाँ, So थोड़ा ब्रेक हो रहा है बस। वॉइस ब्रेक हो रही है। क्लियर है अब? ओके, देखो पहले मैं एक चैट बॉक्स में से 1-2 बस डाउट्स ले रहा हूँ, ठीक है। एक ले रहा हूँ बस, एक ये वाला कि कैन वी नेम अ वेरिएबल विद मॉडिफाइंग द कीवर्ड, फॉर एग्जांपल। हाँ, ये कर सकते हैं आदिल, कि हम कीवर्ड के साथ कोई और मर्ज कर सकते हैं, कोई और सा अपना कस्टम लेटर, ठीक है।
लेकिन वेरिएबल का नाम कभी एक न्यूमेरिक कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब हम ये नहीं कर सकते कि 1 2 एक वेरिएबल का नाम रख दिया, ठीक है। वेरिएबल के नाम होंगे हमेशा टेक्स्ट से स्टार्ट, ठीक है। एंडिंग कैसे भी हो सकती है, लेकिन वो एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए। भले ही कीवर्ड को किसी और टेक्स्ट के साथ मर्ज कर दिया जाए, ठीक है। जैसे ये ब्रेक तुमने लिखा, ब्रेक AU 1 2 2, ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने लिखा होता 1 2 ब्रेक, तो तुमने न्यूमेरिक पहले लिख दिया, तो ये अलाउ नहीं है, ठीक है। तो कभी वेरिएबल्स के नाम उससे स्टार्ट नहीं होंगे, नंबर से, टेक्स्ट से हो सकते हैं, राइट। और एक बिटवाइज ऑपरेटर का था। बिटवाइज बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म होते हैं अगर हम किसी नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे राधिका ने बताया कि हर नंबर को पहले कंप्यूटर में बिटवाइज बिट्स में कन्वर्ट करा जाता है, ठीक है। उसके बाद उस पर ऑपरेशंस होते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली एक्चुअल नंबर पे नहीं कर सकते ऑपरेटर। जैसे 1+2 हम नंबर्स पे ऑपरेशन कर रहे हैं, बिटवाइज क्या करेंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे पहले बाइनरी में। 1 को जैसे कन्वर्ट किया 0 1 में, ठीक है। 2 को कन्वर्ट किया 1 0 में, फिर उस पर बिटवाइज ऑपरेशन करेंगे बिट बाय बिट, ठीक है। हाँ, वेरिएबल स्टार्ट, हाँ ठीक है। और बाकी मैं एंड में लूंगा सेशन के, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, डेटा टाइप्स, रेंज। देखो एक चीज है इसमें, जैसे राधिका ने बताया कि डेटा टाइप सेंस ही होते हैं। ये हम अपने हिसाब से बता रहे हैं उन्हें कि व्हाट आर द Mass, टाइप्स। sorry, या sorry to interrupt you. Please present the present पेन वहाँ पे, वो पूरी स्क्रीन दिख जाएगी। क्या? साइड में जो प्रेजेंट लिखा है ना कैनवा पे अच्छा अच्छा, प्रेजेंट कर दूँ, ऊपर, ओके ओके हाँ वो कर दो, हाँ पूरी स्क्रीन। ओके ओके। हाँ हाँ, अब ये चीज देखो, डेटा टाइप्स हम अपने अकॉर्डिंग तो बता देते हैं कि ये हम इंटीजर टाइप का दे रहे हैं, या फिर लॉन्ग इंट टाइप का दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कैरेक्टर टाइप का दे रहे हैं। बट कंपाइलर इज अ मशीन, ठीक है। तो उसको ये चीज कैसे समझ में आएगी कि मुझे इंटीजर टाइप का अपनी मेमोरी में कैसे बताना है, मुझे कैसे रखना है कि ये जो मेमोरी है ये इंट के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। तो सी में क्या करते हैं, डेटा टाइप्स को नाम दे देते हैं। जैसे जो मतलब जो वेरिएबल जो होते हैं वो एक मेमोरी लोकेशन के नाम होते हैं, कि ये वाली मेमोरी लोकेशन इस वाले नाम से रजिस्टर्ड हो चुकी है, दूसरी वाली इस वाले वेरिएबल के नाम से रजिस्टर्ड हो चुकी है, और कितनी मेमोरी रजिस्टर होगी वही होता है डेटा टाइप, ठीक है, कंपाइलर के टर्म में। जैसे इंट टाइप जो है वो 4 बाइट्स करता है, ठीक है, नॉर्मली। तो 4 बाइट्स कंपाइलर इस तरह समझेगा, अगर हमने इंट लिखा तो वो क्या करेगा, इंट स्पेस वेरिएबल का अगर हम नाम लिख रहे हैं तो बेसिकली उस मेमोरी एलोकेशन को एक नाम दे दिया हमने, और कितनी मेमोरी ली, 4 बाइट्स, ठीक है। तो इतनी मेमोरी हमने रिजर्व कर ली कि हम इसको यूज करेंगे बाद में ऑपरेशंस को। तो ये चीज हमारे लिए रिजर्व रखना, किसी और को मत देना ये चीज, ठीक है। तो इस तरह हम एलोकेट करते हैं मेमोरी डिक्लेयर करके वेरिएबल्स, ठीक है। और रेंज क्या हो सकती है, मतलब मान लो हमें कोई नंबर, जस्ट फॉर एग्जांपल ये जो इंट टाइप की जो रेंज लिखी हुई है राइट में, यहाँ से माइनस दिस नंबर अप टू दिस पॉजिटिव नंबर, यहाँ तक के लिए हम इंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इससे अगर ज्यादा हमें एक्सटेंड करना है तो हमें लॉन्ग इंट और लॉन्ग लॉन्ग इंट यूज में आएंगे, ठीक है। इवन दो लॉन्ग लॉन्ग इंट जो है हम इंट की जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंट को वो कवर कर लेगा लॉन्ग लॉन्ग इंट अपने अंदर। बट मेमोरी क्या फायदा है, मतलब लॉन्ग लॉन्ग इंट एक एक्स्ट्रा मेमोरी ले रहा है, अगर हमें काम सिर्फ छोटी 4 बाइट के नंबर से है तो हम क्यों लॉन्ग लॉन्ग इंट यूज करेंगे। एक्स्ट्रा मेमोरी वेस्टेज इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन प्रोग्रामिंग, राइट। तो इस वजह से जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम मेमोरी के एलोकेट कर देंगे इस वेरिएबल के नाम से, कि ये वेरिएबल इस नाम से हमने एक्यूपाई कर दिया है, ठीक है। और ये रेंजेस गिवन है, ये स्लाइड एट द एंड शेयर कर देंगे, ठीक है। इसी तरह फ्लोट एंड डबल भी होता है। फ्लोट बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट जो डेसिमल होते हैं। अभी तो हमने इंटीजर के बारे में देखा, जैसे 1 2 3 4 ये सब इंटीजर टाइप के हैं, इंटीजर सेट से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर 1.2 है, 1.3 है, ठीक है, तो ये बिलोंग करते हैं फ्लोट और डबल टाइप से, राइट। तो फ्लोट, और अगर हमें मान लो कोई नंबर इनपुट लेना है, या फिर किसी मेमोरी एलोकेशन में जो वैल्यू डालनी है वो एक डेसिमल टाइप की है, 1.2 1.3 समथिंग,
तो उसके लिए हम इंटीजर नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये इंटीजर सेट से बिलोंग नहीं करता ना, तो इट बिलोंग्स टू फ्लोट एंड डबल। ठीक है, तो फ्लोट और डबल दोनों बात एक ही है, सिर्फ प्रिसीजन में फर्क है कि डेसिमल के बाद हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं अपना प्रिसीजन, वो डिपेंड करता है। फ्लोट जो है थोड़ा कम प्रिसीजन रखेगा, जैसे 1.22234 5 यहाँ पर रुक जाएगा। डबल इवन एक्सटेंड कर देगा 1.22356 7 एंड फर्दर नंबर्स, जैसे पाई की वैल्यू है 3.14 एंड इन्फिनिटी तक चली जाती है पाई की वैल्यू। तो कौन सा फ्लोट और डबल में से कौन सा एक्यूरेटली स्टोर करेगा पाई की वैल्यू? डबल स्टोर करेगा, क्योंकि इसका साइज भी बड़ा है फ्लोट से, तो ये मोर नंबर ऑफ ये स्टोर कर सकता है साइज। ठीक है, तो डिपेंड करता है कितनी आपको एक्यूरेसी चाहिए, उस हिसाब से फ्लोट और डबल यूज करो। और यहाँ पे भी वही बात आती है कि अगर रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा प्रेसिजन की तो फ्लोट यूज कर लो, क्योंकि कम मेमोरी एलोकेशन होगा। राइट। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ठीक है, अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हैं हमने लाइक इंट टाइप, मतलब अब हम यूज़र से, मान लो हम इनपुट लेते हैं, इनपुट कैसे लिया जाता है यूज़र से? हम एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, इसमें scanf एक फंक्शन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, scanf फंक्शन। ठीक है, तो एक मैं इसको लाइव कोड करके दिखा रहा हूँ। ये विजिबल है ना, और एडिटर मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ इसकी, अगर किसी में एनवायरनमेंट सेटअप नहीं है तो वो ये यूज़ कर लो, इट्स अ गुड कंपाइलर। और इन केस कोई इमरजेंसी हो तो ये यूज़ कर लिया करो प्रोग्रामिंग के लिए। लिंक शेयर कर दिए। ठीक है, सो मैंने जैसे नॉर्मली डिक्लेयर किया इंट ए टाइप का। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, कि मैंने बस बता दिया कि मैं इसको एक इतनी मेमोरी एलोकेट कर लो 4 बाइट्स की मेरे लिए, और उस मेमोरी का नाम रख दो ए। ठीक है, अब यूजर से मान लो हमें बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें गार्बेज वैल्यू होती है। गार्बेज वैल्यू इज अनप्रेडिक्टेड वैल्यू, मतलब कंपाइलर रैंडमली कुछ भी उसके अंदर वैल्यू रख देता है। ठीक है, कुछ एज्यूम नहीं करता। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में हमें ये चीज़ नहीं करनी होती ना, मतलब कोई रैंडमली वैल्यू टू टाइम चेंज हो रही है, ये चीज़ तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं होगी। तो हमें कुछ वैल्यू देनी होगी उसे अपने इनपुट के फॉर्म में। तो उस इनपुट के लिए हम scanf यूज करते हैं। scanf %d। ठीक है, अब मैं बताऊंगा, बस %d पे आ रहा हूँ। एड्रेस ऑफ ए। अब देखो, अब %d जो है ना, यूजर ऐसा नहीं है कि अगर हमने इन टाइप का डिक्लेरेशन किया है। ठीक है, अब इन टाइप का किया है और यूजर 1.2 डाल रहा है, 1.3 डाल रहा है, या कैरेक्टर डाल रहा है। ठीक है, ए डाल रहा है, बी डाल रहा है, तो ये सब तो अलाउ नहीं करना चाहिए ना। जो हमने एलोकेट करी है मेमोरी, यूजर को भी उसी टाइप का इनपुट लेना होगा, नहीं तो ऐसे तो कोई फायदा नहीं होगा डिक्लेयर करने का 4 बाइट्स का, अगर हम चेंज कर पा रहे हैं यूजर इनपुट के हिसाब से। तो यूजर को भी बताना होगा कि जो तुम इनपुट दो मुझे, वो इंटीजर टाइप का दो। ठीक है, तो इंटीजर टाइप ये चीज कैसे बताएंगे यूजर को? तो उसके लिए ही ये %d यूज हो रहा है। ठीक है, ये %d जो है वो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वही बता रहा है कि ये जो इनपुट हो ना ये इंटीजर टाइप का हो। और ये %d एक नॉर्मल बस d रख दिया इसका नाम, कोई ऐसा रीजन नहीं है इसके लिए। राइट, तो इसी तरह बाकी भी ले सकते हैं, जैसे फ्लोट के लिए f कर सकते हैं, या फिर और भी होते हैं, लॉन्ग के लिए भी होता है। कैरेक्टर अगर इनपुट लेना है तो उसके लिए %c होगा। ठीक है, तो ये बस यूजर को बताने का मेथड है कि तुम जो इनपुट लो, कोई ऐसा ना हो कि कोई भी रैंडमली इनपुट दे दिया। इंटीजर अगर हमने डिक्लेयर किया है तो इंटीजर इनपुट दो। ठीक है, और ये एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो इस वाले एड्रेस पे ये वाली वैल्यू डाल दो जो यूजर ने इनपुट ली, %d से इनपुट ली यूजर ने, और इस एड्रेस पे, इस मेमोरी एड्रेस पे जो हमने किया है, ये लोकेशन बता रहा है, इस वाले एड्रेस पे डाल दो ये वाली वैल्यू जो यूजर ने इनपुट करी है। ठीक है, तो ये है scanf का काम, यूजर का इनपुट ले लेना जो हमने डिक्लेयर किया है वेरिएबल उसका। ठीक है, मान लो मैं इसको रन करूंगा कोड को। देखो, अब ये इनपुट लेगा, मैंने इनपुट ले लिया, दिख रहा होगा ना इनपुट लेते हुए? तो नीचे देखो, ये चीज दिस, यहाँ पे मैंने 2 इनपुट किया। ठीक है, और
टू के बाद जब मैं अपना इनपुट पूरा कर लूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये इनपुट डाल दिया है टू, अब तो उसके बाद स्पेस या फिर एंटर कर देते हैं, स्पेस कर दो या फिर एंटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्यों मैं कह रहा हूँ एंटर और स्पेस करने के लिए, मान लो टू के अलावा आपको लिखना है, एक मिनट बस, टू के अलावा 23 आपको लिखना है अगर मान लो, तो उसके लिए उसे बताना होगा ना कि कब मैं अपना जो लाइक इनपुट है वो ओवर करना चाह रहा हूँ, मान लो 2 3 4 भी लिखना है मुझे, तो कब मैं बताऊँ कि 2 3 4 मैंने लिख दिया, अब ये इनपुट मेरा हो चुका है, तुम आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो यही बताने के लिए एंटर या स्पेस करते हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में, आई होप कि इनपुट कैसे लेना है यूजर से। एक बार चैट बॉक्स में कोई लिख दो, मतलब कोई डाउट हो इसमें। ओके, यू गॉट इट। ठीक है, तो बस यही था इसमें। फॉर्मेट स्पेसिफायर से ही है कि यूज़र को बताना कि इस टाइप का डेटा जो है, ठीक है, वो हमने इनपुट लेना है हमें, ठीक है। %d %c हो गया, फ्लोटिंग के लिए f हो गया, %c हो गया कैरेक्टर के लिए, मान लो a b c ये सब एक कैरेक्टर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रिंट एफ स्टेटमेंट नहीं, इनफैक्ट फंक्शन, तो प्रिंट एफ भी एग्जैक्टली स्कैन एफ की तरह ही वर्क कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो फंक्शंस हैं, प्रिंट एफ स्कैन एफ, स्टार्टिंग में एक लाइब्रेरी बताई थी stdio.h, उसमें डिफाइंड है, कोर सी में ये अलाउड नहीं है, कोर सी में जो डिज़ाइन हुई है लैंग्वेज, और उसमें ये printf और scanf फंक्शन प्रेजेंट नहीं है। चाहो तो लिख के देख लेना, ये इंक्लूड ना करके, बाकी चीज़ें तो रन कर जाएंगी बट ये दोनों फंक्शन नहीं रन करेंगे। तो stdio.h एज द नेम सजेस्ट, इनपुट आउटपुट के लिए यही वाली हेडर फाइल इंक्लूड की जाती है, ठीक है। अब मान लो मुझे कोई चीज़ प्रिंट करानी है, उसके लिए printf यूज़ होता है, ठीक है, कंसोल पे प्रिंट करानी है, printf डबल कोट्स के अंदर हे देयर, ये प्रिंट करा दिया नॉर्मल, ठीक है। इसे रन करा, ठीक है, हे देयर प्रिंट हो गया। अब ये मैंने बस नॉर्मली प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब लेकिन ये हो सकता है ना, जो मैं इनपुट लूँ मैं उसे प्रिंट कराना चाहूँ, ठीक है। एक्चुअल में तो ये होता है ना, जो रियल लाइफ में मतलब प्रोग्राम्स होते हैं कि यूज़र का इनपुट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं आगे, ठीक है। ऐसे तो नहीं है ना अपने हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, प्रिंट एफ हे देयर कर दिया। तो फॉर दिस स्कैन एफ करता हूँ, scanf %d %a अच्छा, ये रन करेगा क्या ये कोड, कोई बताओ। अब ये जो कोड लिखा है, अच्छा हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग नहीं करेगा। हाँ, वाई, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है। ओके, डिक्लेयर नहीं है, और डिक्लेयर नहीं है, डिफाइन नहीं है, मतलब कुछ बताओ। ये चीज़ नेक्स्ट टॉपिक है, डिक्लेयर नहीं है, डिफाइन नहीं है, फिर इनिशियलाइज नहीं है, ठीक है। रन तो वैसे नहीं करेगा, और वेरिएबल ना डिक्लेयर्ड है ना डिफाइंड है, राइट, ना इनिशियलाइज है, ठीक है। तो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ इंट ए, डिफाइन कर देता हूँ एक्चुअली, ठीक है, टू मोर प्रिसाइज। अब मैं %d a लिख दूंगा। अच्छा, ये एड्रेस ऑफ ए मैंने इसमें क्यों नहीं पास किया, रीज़न यही है कि जो हम इनपुट जो एड्रेस, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे हम कह रहे हैं कि वैल्यू चेंज करो, इनिशियली तो गार्बेज वैल्यू है जैसे मैंने बताया था, लेकिन उसको चाह रहे हैं हम गार्बेज वैल्यू को चेंज करके इस एड्रेस पे ये कर दो जो यूजर इनपुट दे रहा है, तो उस वजह से एड्रेस पास करना पड़ता है, ठीक है। अब printf ये जो है ना, इसमें हमें कोई एड्रेस की जरूरत नहीं है, जो वेरिएबल ए नाम का है बस उसे प्रिंट करा दो, भले ही वो गार्बेज वैल्यू हो, राइट,
या उसमें कुछ भी वैल्यू यूजर की इनपुट हो, ये एज इट इज प्रिंट करा देगा उसे, इवन गार्बेज वैल्यू को प्रिंट करा देगा, राइट। रन करें। वन इनपुट दिया, वन प्रिंट हो गया, ठीक है। वन इनपुट दिया, वन प्रिंट हो गया। अच्छा, मैं स्कैनएफ नहीं लेता, एक काम करता हूँ, गार्बेज वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। इंट ए, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया मैंने। गार्बेज वैल्यू मीन्स, एक मिनट, गार्बेज वैल्यू मीन, देखो द थिंग इज, यहाँ पर मैंने इंट ए जो है, मैंने बस एक मेमोरी लोकेशन डिफाइन कर दी कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल अपना शो करूंगा, राइट। तो यूजर इनपुट देगा वो बाद में, राइट। तो ये मैंने लेकिन ये नहीं बताया ये चीज कि इसमें क्या वैल्यू दूं। ए एक वेरिएबल है, उसमें कोई वैल्यू होगी ना, 2 या 3, कोई भी इंटीजर टाइप की। तो इनिशियली बाय डिफॉल्ट कंपाइलर एक गार्बेज वैल्यू, एक अनप्रिडिक्टेड वैल्यू मान लेता है उसके अंदर। मतलब वो डिपेंड करता है कंपाइलर पे। कुछ भी अनप्रिडिक्टेड है, टाइम टू टाइम चेंज होगी, कभी जीरो आएगी तो कभी काफी एक बिग इंटीजर आ जाएगा, काफी ग्रेट इंटीजर, राइट। तो टाइम टू टाइम चेंज होगी और ऐसी वैल्यू का कोई काम नहीं होगा जो टाइम टू टाइम चेंज कर रही हो, राइट। तो अनप्रिडिक्टेबल है, तो इस वजह से ये गार्बेज वैल्यू है। प्रिंट कराता हूँ, गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जीरो प्रिंट हो गया अभी, जबकि मैंने तो कहीं स्टोर ही नहीं किया था जीरो, राइट, ए में। तो खुद ही उसने अनप्रिडिक्टेड वैल्यू है, ठीक है, डिपेंड करता है कंपाइलर पे। अनप्रिडिक्टेड वैल्यू है, टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगी। अब ये वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कांस्टेंट बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म्स में वही है कि एक 2, 3 इस टाइप के इंटीजर जो हैं वो एक कांस्टेंट होते हैं। मतलब इनकी कोई वैल्यू कभी चेंज ऐसे नहीं कर सकते हम 2 में 3 असाइन कर लें, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे बताया था। मान लो 2 में असाइन 3 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना, असाइनमेंट ऑपरेटर 2 में असाइन 3 ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ऐसे नहीं हम चेंज कर सकते। लेकिन इंट एक्स में असाइन हो जाए 3, ये तो चेंज हो सकती है ना, एक्स की वैल्यू, एक्स एक वेरिएबल है। या फिर एक्स में असाइन हो जाए 4 या 5 या 6, कुछ भी, ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। तो इस रीजन की वजह से एक वेरिएबल का नाम दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें आता है डिक्लेरेशन, एक्सटर्न कीवर्ड, ठीक है। देखो डिक्लेरेशन इज समथिंग लाइक, हम सिर्फ कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये वाली स्टेटमेंट, ये जो वेरिएबल है ये डिक्लेयर्ड है, यहाँ नहीं बट कहीं और। इस मतलब मान लो फॉर एग्जांपल एक्सटर्न इंट ए, ये मैंने रखा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कंपाइलर जो है इसको मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, करना तो 4 बाइट्स चाहिए, ठीक है, लेकिन वो करेगा नहीं। बस जब भी कंपाइलर इस लाइन पे आएगा ना, तो वो उसे बस एक मैसेज होगा, एक तरीके का, इट्स अ काइंड ऑफ मैसेज कि ये ए वेरिएबल जो है हम आगे मेमोरी एलोकेट करेंगे इसमें। तो अभी के लिए तुम इस लाइन को एरर मत दो इसमें, ठीक है। तो इसको बस स्किप कर दो लाइन को एज इट इज, ठीक है। तो एक्सटर्न इंट ए, हमने इसे मेमोरी एलोकेट नहीं करी है, सिर्फ एक डिक्लेयर कर दिया है, बिल्कुल 0 बाइट्स की मेमोरी है इस वक्त इस ए वेरिएबल में, ठीक है। कहीं ये प्रेजेंट ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है मेमोरी में, सिर्फ डिक्लेयर्ड है कि हमने मैसेज दे दिया कि हम इसे बाद में मेमोरी देंगे। अब वो मेमोरी जो देंगे उसे ही कहते हैं डेफिनेशन, ठीक है। मेमोरी देने को डेफिनेशन कहते हैं, इंट ए इसको कहते हैं डिफाइन करना वेरिएबल को, मतलब मेमोरी देना एक्चुअल में। डिक्लेयर इज लाइक, उसको सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम इसे बाद में मेमोरी देंगे। और डिफाइनिंग में मेमोरी एक्चुअल में दी जाती है, सिंटेक्स ये है, ठीक है। इस सारे कोड शेयर हो जाएंगे, ठीक है, एट द एंड, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में कि हम डिक्लेयर डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस, राइट। मेमोरी एलोकेशन डिफाइनिंग के टाइम होगी। और इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन इज समथिंग लाइक वेरिएबल को
तुम डिफाइन करते ही उसमें एक वैल्यू दे दो, इंट ए इज इक्वल टू 5, मतलब ए को हमने वैल्यू दे दी 5, इनिशियलाइज कर दिया उसे। कोई गार्बेज वैल्यू कंपाइलर को नहीं कहा कि तुम अज्यूम कर लो गार्बेज वैल्यू है इसमें, बट एक्चुअली उसे एक वैल्यू दे दी गई। चैट बॉक्स ओके अभिषेक, तो ए इज नॉट डिफाइंड, आई होप यू हैव गॉट इट के डिफाइंड क्यों, मतलब डिफाइंड क्यों नहीं था और डिक्लेयर भी क्यों नहीं था। ठीक है, हम चाहते तो एक्सटर्न ये करके सिर्फ उसे डिक्लेयर कर देते, राइट, लेकिन उसमें एक्चुअल मेमोरी ना कंज्यूम होती, राइट, बस मैसेज जाता कंपाइलर को। ठीक है, आई होप दिस गॉट इट। The next thing comes is decision making. ठीक है, you have said that we have to execute the function first, and while the addition we are giving like void main or int main. This int type, why we are declaring int main and this everything. तो इसका रीजन जो है ये एक सेकंड लेक्चर का पार्ट है जो अपकमिंग डेज में होने वाला है। इंट मेन खुद में एक फंक्शन है जो एक्चुअली बिलोंग एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डिपेंड हो जाता है, मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेट हो जाता है ये चीज़। तो ये थोड़ा सा मतलब इसका अभी फंक्शंस पढ़ लें हम, इसीलिए इसको होल्ड पे रखा हुआ है कि अभी के लिए सिर्फ इतना ही बेटर है समझना कि इस ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, यहाँ पे अपना हमें कोड लिखना है। ठीक है, तो इस वजह से अगर अभी इसको एक्सप्लेन किया तो एक टेक्निकल टर्म्स काफ़ी आ जाएंगे, तो दैट्स व्हाई इट वोंट बी कंफर्टेबल। लेकिन नोट डाउन कर लेना इसे बिकॉज ये नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शंस कवर होगा टॉपिक, तो उसके बाद ये चीज़ होगी रिटर्न स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग आता है, इफ एल्स एल्स इफ एंड स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग है। देखो एक सैंपल से बता रहा हूँ, काफ़ी टाइम हम कोई कोड करते हैं तो हम यूज़र के इनपुट पे या फिर कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर मैट हुई तो ये चीज़ करो वरना अदर थिंग करो। ठीक है, टास्क 1 करो नहीं तो टास्क 2 करो। ठीक है, ये चीज़ आता है ना, मतलब एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि एक अगर मान लो कंडीशन नंबर 0 सेटिस्फाई हो रही है तो 1 कंडीशन की तरफ जाओ, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सेकंड की तरफ जाओ। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल से है। मान लो तुम्हें कोई प्रोग्राम लिखना है जिस बताना है कि वो इवन है या ऑड है नंबर। ठीक है, तो उसमें एक कंडीशन लगानी होगी कि अगर मान लो इवन किस केस पे होगा, थोड़ी मॉड्यूलर मैथमेटिक्स करके इवन क्यों होगा वो, या ऑड क्यों होगा नंबर। तो ये कंडीशंस जो आती हैं, ठीक है, एक लेमन लैंग्वेज में हम बोलें तो मतलब अगर ये चीज़ इफ आई वांट टू डू दिस देन डू दिस, इफ एल्स इफ सम अदर कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन डू दिस। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है कि एक और कंडीशन सिर्फ एक्चुअल रियल लाइफ में दो नहीं होती कंडीशन, बूलियन पे काम नहीं करते हम, मल्टीपल कंडीशंस पे काम करते हैं कि 0 कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये वाला टास्क चलाओ, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये वाला टास्क चलाओ। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये थर्ड वाला टास्क चलाओ। तो ये चीज़ भी होती है ना, मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, मोर देन 2। ठीक है, तो ये सारी डिसीजन मेकिंग कैसे हम करेंगे अपने कोड में, कैसे डिसीजंस लेंगे कि इस ब्लॉक को कब चलाना है, दूसरे को कब चलाना है, तो उसके लिए ही आते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसका सिंटैक्स ये है, इफ कोई कंडीशन, अभी मैं बता रहा हूँ, इफ कंडीशन डू दिस एल्स डू दिस। ठीक है, ये कंडीशन है, ये एक ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर एक कंडीशन आती है। ठीक है, मान लो कोई हमने स्कैनफ लिया,
स्कैन एफ लिया, मैं ऐसे ही मतलब लिख रहा हूँ, आई नो इट वोंट वर्क बट स्कैन एफ ए, ठीक है, एक इनपुट लिया और एक चेक किया कि अगर इनपुट ग्रेटर देन 10 है, ये वाले ऑपरेटर सभी बताए थे ना, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इफ ए इज ग्रेटर देन 10, ये तो बहुत बेसिक सी मैथमेटिक्स वाला ऑपरेटर है, ठीक है। तो प्रिंट एफ समथिंग, प्रिंट एफ दिस, ठीक है। उसके अलावा क्या करूं, प्रिंट एफ दिस अदर थिंग, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन 10 है, यूजर ने इनपुट दिया ए, अगर मान लो 12 इनपुट दिया, तो वो चेक करेगा इफ ए इज ग्रेटर देन 10, जो कि है, तो वो प्रिंट एफ दिस कर देगा, दिस को प्रिंट कर देगा, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये है। और इसी तरह हमें अगर मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है इफ एल्स के अलावा, तो एल्स इफ भी कर सकते हैं, एल्स इफ लगा सकते हैं, एल्स के साथ एक इफ लगा दो, ये एक सेकंड कंडीशन होगी कि अगर एल्स इफ ए इज स्मॉलर देन 5, तो ये लिख दो, और अगर ये दोनों ही सेटिस्फाई ना हो तो लास्ट में एट द एंड ये वाली चीज लिख दो, समथिंग, कुछ भी लिखना है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हो गई कि अगर ऐसा है, और अगर ऊपर वाली नहीं सेटिस्फाई हुई तो नीचे वाली चेक करो, अगर वो भी नहीं हुई तो लास्ट में ये कर दो, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक ही चलने वाली है, राइट, तीनों या दोनों, कोई दो नहीं चलेंगी, कोई एक, कोई तीन नहीं चलेंगी, ठीक है, कोई एक ही चलने वाली है, ठीक है। अच्छा, ये कमेंट्स में कर रहा हूँ, ये चीज एक सी में ये कमेंट्स करने का मेथड है, 2 बार राइट स्लैश लगा के, ठीक है। कमेंट्स आर बेसिकली कोड्स जो हम रीडेबिलिटी के लिए ऐड कर सकते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे कंपाइलर से, हम उसमें कुछ भी लैंग्वेज लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इंग्लिश लिख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज, ठीक है। तो वो रीड नहीं होंगे कंपाइलर से, वो बस एक कोई और अगर हमारा कोड रीड करना चाहे उसका एक मेथड है बताने का कि ये चीज़ हमने क्यों यूज़ करी, ये चीज़, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट के बारे में ये चीज़ एज अ होमवर्क दे रहे हैं कि इफ एल्स तो समझ में आई गेस आ गया होगा, कि आई होप, राइट, या कोई डाउट है तो पूछ लेना। तो इसी तरह उसका एक ऑल्टरनेटिव है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो भी एग्जैक्टली यही काम करेगा कि पर्टिकुलर कंडीशन मैट हुई तो ये करो, एल्स इफ वो नहीं हुई तो दूसरी चीज करो। तो इसके बारे में एक्सप्लोर करना कि स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, इफ एल्स के रिलेट करके, राइट, तो समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। आई मोस्टली यूज इफ एल्स ही होगा, इसलिए स्विच स्टेटमेंट पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इफ एल्स मतलब 99% इवन 100% टाइम्स इफ एल्स ही यूज होने वाला है कोड्स में, सो स्टेटमेंट रेयरली यूज होने वाला है ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज आस्काई सिस्टम, ठीक है। तो आस्काई सिस्टम देखो, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज बाइनरी में वर्क करता है कंप्यूटर, ठीक है। अब वो बाइनरी आया कहाँ से, हमने जो कोई नंबर दिया 5 है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, लॉजिक गेट्स जैसे पढ़े होंगे, लॉजिक गेट्स क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बेस को, मान लो बेस 10 है, उसको बेस 2 में कन्वर्ट किया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम 5 को कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर यूजर ने इनपुट दे दिया ए बी सी डी, ये सब, मतलब इसको तो नहीं पास कर सकते ना न्यूमेरिक वैल्यू की तरह, कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हैं इनके ऊपर। तो हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जो इन्हें एक पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू असाइन कर दे इन सबको, राइट, ए को बी को, इन सब कैरेक्टर्स को। तो उसी सिस्टम के लिए आस्काई सिस्टम यूज होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज ब्रेकडाउन बाइनरी में होती है। जैसे इमेज है, इमेज जो होती है, इमेज एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में हर सेल बताता है कि इस कलर की डेंसिटी क्या है, तो वो एक नंबर के फॉर्म में होती है। तो अल्टीमेटली हर चीज ब्रेकडाउन हो सकती है बाइनरी में, ठीक है। और इसीलिए कि हर चीज अल्टीमेटली नंबर्स की फॉर्म में ही होती है। साउंड वेव्स है, वो एक ग्राफ पे प्लॉट हो सकती है, ठीक है। तो ग्राफ का हर पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी तरह साउंड को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली नंबर में कन्वर्ट करते हैं हर टाइप के डेटा को,
ठीक है, तो उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। तो इसलिए आया है आस्काई सिस्टम, जैसे हमारे कैरेक्टर्स को करने के लिए। बट प्रॉब्लम वाज कि अभी मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न डेज है, अब इसमें सिर्फ टेक्स्ट तो नहीं होता ना, कोई चैटिंग कर रहे हैं हम या फिर कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, इमोजीज भी हम करते हैं, इमोजीज करते हैं, या फिर कोई फ्रेंच लैंग्वेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मतलब जो आस्काई सिस्टम थी वो इनिशियली, वो उसके लिए कमी पड़ रही थी कैरेक्टर्स की, ठीक है। हमने यूनिक वैल्यू असाइन तो कर दी थी, बट वो उसमें इमोजीज कवर नहीं हो पाए। इमोजीज जैसे यूज होते हैं, उनका भी एक आस्काई सिस्टम होता है, ठीक है, उनको भी एक आस्काई वैल्यू असाइन होती है सबको, ठीक है। तो उस वजह से आया यूटीएफ सिस्टम, यूटीएफ 8 एंड यूटीएफ 16, ठीक है। तो वो चीज़ पार्ट नहीं है इसका, बट वो चीज़ यही इसके लिए समझ लो कि यूटीएफ 8 और 16 इसलिए आया क्योंकि आज का सिस्टम हैंडल नहीं कर पा रहा था अदर फॉर्म ऑफ डेटा को, इमोजीज एंड अदर फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस को, ठीक है। हम्म, हाँ, तो यहाँ तक हो गया ना। ओके, लूप्स एंड इटरेशंस आता है, ठीक है। अब लूप्स जैसे इफ एल्स में हमें ये कंट्रोल स्टेटमेंट थे हमारे इफ एल्स, कि हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं अपने कोड को। ऐसा नहीं है कि हम हमारा कंपाइलर लाइन बाय लाइन चल रहा है, हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं अगर कोड को, उन्हें कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। जैसे इफ एल्स हो गया, या फिर ये लूप्स हो गए जो अभी बता रहा हूँ, तो अपने हिसाब से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने कोई लाइन लिखी, प्रिंट एफ दिस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो कंपाइलर एक बार अपने अकॉर्डिंग करेगा इसे प्रिंट, एक बार बस, लेकिन हमें एग्जीक्यूशन अपने अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। हमें 5 बार लिखना है दिस को, तो क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आता है फॉर लूप। लूप्स एंड इटरेशंस इसी काम के लिए आते हैं, एक स्टेटमेंट को, एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार चलाने के लिए, ठीक है। जैसे इसका सिंटेक्स ये है, print I for I is equals to 1, I smaller than 10, I plus plus, ठीक है। और ये चीज लिख दो, प्रिंट एफ कितने बार, 10 बार, 1 बार, 2 बार, इसी तरह ये काउंटिंग जाएगी अप टू 10, 1 2 3 4 5 अप टू 10, ठीक है। और आई प्लस प्लस जो ये एक ऑपरेटर ही है, एक करंट वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो एक्स में इनिशियली 2 है और हमें 3 करवाना है, तो एक्स प्लस प्लस कर दो, ठीक है, बाय 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करो, 1 से स्टार्ट करो और कंडीशन ये चेक करो कि आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10 ही होना चाहिए, और इंक्रीमेंट करते रहो एक एक करके। पहले 1 है तो उसे 2 करो, फिर 3 करो, और जब जब ये हो रहा है ये वाला ब्लॉक नीचे वाला चलाओ एक बार, जैसे ही वो आई प्लस प्लस हो। तो जैसे ही आई प्लस प्लस होगा एक ना एक बार ये चलेगा एक बार, राइट। तो 2 पे जैसे ही आएगा ये चलेगा, फिर 3 पे आएगा ये चलेगा, अप टू 10 चलेगा ये, ठीक है। तो 10 बार ये लूप चलेगा। तो ये इटरेशन है लूप्स एंड इटरेशंस में, ठीक है। इसी तरह वाइल लूप है, कि वाइल लूप चेक करता है कि अगर सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जब तक कराते रहो। ये पहला फॉर लूप का ही एक अल्टरनेटिव है, वाइस आई स्मॉलर देन 0, क्या करो, प्रिंट एफ कराते रहो दिस। लेकिन इसमें एक चीज है, वहां पे हम आई प्लस प्लस करवा रहे थे फॉर लूप में ही, ठीक है, उसी के सिंटेक्स में। यहाँ पे हमें एक्सटर्नली बताना पड़ता है कि हमें आई को माइनस माइनस करना है। आई प्लस प्लस था, इसी तरह आई माइनस माइनस मीन्स के उसको बाय 1 डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर 3 है तो एक को 2 कर दो, फिर 1 कर दो, ठीक है। और कब तक चलाओ, वाइल आई इज स्मॉलर देन, वाइल आई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मान लो आई में इनिशियली मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ इसे 10 से, ठीक है। अब वाइल आई इज ग्रेटर देन 0, आई को माइनस माइनस तो करो ही, बट ये चीज भी प्रिंट कराते रहो, ठीक है। 10 है 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, वो डिक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। अच्छा ये चीज बताओ, वाइल ट्रू ये क्या प्रिंट करेगा, कोई भी बताओ। इन्फानाइट लूप इन्फानाइटली प्रिंट करता रहेगा। हाँ सही है, exactly। तो इससे एक और चीज क्लियर हो रही होगी,
जो ये सिंटेक्स है वाइल लूप का, ये कंडीशन होती है, एक बूलियन कंडीशन होती है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। वाइल आई इज ग्रेटर देन जीरो, ये एक ट्रू या फॉल्स कंडीशन है। अगर 10 है आई, तो आई इज ग्रेटर देन जीरो है, ट्रू है, हाँ, तो तब ये चले। और अगर नहीं है तो ये खुद ही टूट जाए, ठीक है। जैसे मान लो आई जीरो हो गया, तो जैसे ही जीरो हुआ तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई ना, आई इज ग्रेटर देन जीरो कांट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये कंडीशन टूट जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे एक बूलियन वैल्यू आती है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये चलेगा मास, ये। हाँ राधा। हेलो मास, हाँ जैसे तुमने आई ग्रेटर देन जीरो किया था ना, वहीं पे तुम प्रिंट परसेंटेज भी आई करके दिखा दो तो उनको पता चल जाएगा कि आई की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है और कब स्टॉप कर रही है। हाँ, तुमको समझ आ जाएगा। देखो, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा आई, ठीक है। अब आई की वैल्यू देखना, इनिशियली 10 प्रिंट होगी, फिर आई माइनस माइनस हो जाएगी, 9 हो जाएगी, फिर 9 प्रिंट होगी, इसी तरह। अच्छा सॉरी, वो पाइथन में होगा प्रिंट स्टेटमेंट, राइट, शाम को उसकी क्लासेस हैं। प्रिंट एफ सी में होता है, प्रिंट जो होता है वो पाइथन में होता है। देखो ये 10 वो दे 9 दो है। न्यू लाइन वाला। हाँ ओके। हम्म। ये न्यू लाइन बैक स्लैश में यूज कर रहा हूँ, दैट सिंपली मीन्स के एक न्यू लाइन में प्रिंट कर रहा हूँ तो फिर 10 9 8 7 6, न्यू लाइन में पहले 10 था, फिर 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6, इसी तरह, ठीक है। तो आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये आई होप आ गया होगा। जैसे फाइंड सम ऑफ सम टिपिकल सीरीज फाइंड करनी है, ठीक है, तो ये चीज के लिए यूज कर सकते हैं लूप्स को। वाई टू राइट रिटर्न जीरो, हाँ एग्जैक्टली अहमद, ये चीज जो है, ये फंक्शन जो टॉपिक आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में, तो उसमें फंक्शन इंट्रोड्यूस होगा, और ये रिटर्न स्टेटमेंट मतलब नॉट नेसेसरी है ये इसको हटा के भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्यों लिखना है या फिर क्यों लिखा जाता है, तो वो चीज़ नेक्स्ट उसमें कवर होंगी। अभी बताया तो मे भी काफ़ी लोग समझ जाएं, लेकिन मतलब मोस्ट ऑफ देम को अनकंफर्टेबल हो जाएगा इस वजह से अभी नहीं बता। ठीक है, तो अभी आई गेस टाइम हो गया है, तो लूप्स एंड इटरेशंस तक ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा, लूप्स में ये बताओ, एक सिर्फ एक ही फॉर लूप लग सकता है क्या, मतलब लूप सिर्फ एक ही बार कर सकता हूँ क्या? मतलब मैं अगर चाह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर लूप है, उसके अंदर एक और लूप हो, ठीक है, मान लो, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है। ओके। मान लो कोई एप्लीकेशन बताओ जहाँ पे इसका एप्लीकेशन मतलब जहाँ पे यूज होता होगा नेस्टेड लूप, मतलब एक के लूप के अंदर एक लूप, कोई भी एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे, मैट्रिक्स एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैट्रिक्स अगर बोला है तो मतलब एक टाइप का एक प्रोग्राम्स देता है हम करने को, नेक्स्ट लेक्चर में वो जो मतलब बेस्ट करके लाएगा उसका देखेंगे, ठीक है। बेस्ट मीन्स के उसने वेरिएबल सही टाइप की यूज़ करे हों, जो जितनी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करे हों। वेरिएबल्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रीडेबल होने चाहिए, देख के पता चल जाए कि एक मैट्रिक्स है, ऐसा नहीं है कि ए बी सी। मैंने बहुत गलत यूज़ करा है यहाँ पे, आई नो, आई यूज़ किया, एक्चुअल में ये यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक अच्छे वेरिएबल के नाम यूज़ करना चाहिए, तो इस पर डिपेंड करता है कोडिंग, ठीक है। तो 2-3 प्रोग्राम्स दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो जितना भी अब तक कवर हुआ है उसके बेसिस पे ये चीज़ करना, ठीक है। और देखते हैं किसका मतलब बेस्ट कोड क्वालिटी होगी। फर्स्ट इज दिस, सम ऑफ n फर्स्ट n फिबोनाची नंबर्स एक्सक्लूडिंग इवन नंबर्स। चैट बॉक्स में देखो, फर्स्ट प्रोग्राम ये है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो जस्ट पिंग में, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ कॉपी कर लेना, ठीक है। जो भी अब तक कवर हुआ है उसी बेस पे है, लूप्स और इफ एल्स कंडीशंस के बारे में।
ठीक है, सम ऑफ ASCII वैल्यूज ऑफ लेटर्स फ्रॉम A to B, जैसे बताया हर कैरेक्टर की एक ASCII वैल्यू होती है। तो आपको क्या करना है, स्मॉलर A to B को और हायर A to B को प्लस करना है, दोनों का सम, ठीक है, प्रिंट करवाना है बेसिकली। इनफैक्ट जो क्वेश्चन है गूगल क्लासरूम में हम अवेलेबल करवा देंगे, अभी एक दो और हैं, ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे मैंने 2 डाल दी। तो गूगल क्लासरूम लिंक ज्वाइन कर लेना, ठीक है, बाकी के प्रॉब्लम्स उस पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट टर्न तक कर लेना, और कोई भी डाउट आए तो जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो अब कोई डाउट है, मतलब मास क्वेरीज हैं कुछ चैट बॉक्स पे, उनको ले लेते हाँ हैं। मैं तो नेहा ने एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैशटैग इंक्लूड एज इन ग्रेटर देन एंड हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग टाइप। तो देखो, हाँ देखो तुम लोग ये हाँ मैं बता रही हूँ, अगर समझ नहीं आता तो देन यू कैन एक्सप्लेन। या नहीं, एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग जैसे कि ये बताया कि हेडर फाइल में कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हम यूज कर लेते हैं अपने कोड में, ठीक है। जब आप मतलब अगर बहुत अच्छी तरीके से कोडिंग करोगे तो आप अपने जो प्रोग्राम है उसको बहुत कंसाइज चाहोगे कि मैं इस फंक्शन को बार बार रिपीट ना करूं, ठीक है। मैंने वो पिछले वाले कोड में भी रिपीट करा था और इस वाले कोड में भी मैं लिख रही हूँ उस प्रोग्राम उस फंक्शन को। तो आप अपनी खुद की फाइल बना लेते हो, .h फाइल, हेडर फाइल, और उसमें आप कुछ अपने फंक्शंस डाल लेते हो, मतलब बना देते कोड डाल लेते हो, और बाद में वहां पर अपन हैशटैग इंक्लूड जो करते हैं वहां पर हम अगर अपनी खुद की बनी हुई हेडर फाइल इंक्लूड करना चाहते हैं देन वी यूज दिस स्ट्रिंग टाइप जो है, ठीक है। अदरवाइज अगर हमें अपनी फाइल नहीं यूज करनी है हेडर फाइल, देन वी सिंपली यूज ओपनिंग क्लोजिंग है जो बेसिक सिंटैक्स होता है। अब क्या करते हैं, जैसे हम अपनी फाइल इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो उसको हम स्टार्टिंग तो वैसे करेंगे जैसे स्ट्रिंग वाले के लिए करते हैं, लेकिन अगर उसको उस नेम से कोई फाइल नहीं मिलती है तो वो इसी सिंटेक्स को कन्वर्ट कर देगा, इसमें जो बेसिक सिंटेक्स होता है जिसमें हम लेस देन और ग्रेटर देन साइन लगाते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। बेसिक डिफरेंस यही है कि अगर आपको सिर्फ अपनी एक हेडर फाइल, हाँ ओके। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इनम, किसी ने पूछा, किसने पूछा था, who asked the question about इनम? हाँ, इमामुद्दीन, हाँ। सो इनम, अभी जैसे आपको भी एरे भी नहीं पता है, तो अगर पता हो तो इनम में क्या होता है कि लाइक हम अपने टाइप का एक डेटा मतलब डिक्लेयर कर देते हैं जिसमें हम इनम की वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद हम कोई वेरिएबल देते हैं, वेरिएबल नहीं, उसके बाद हम एक मतलब एरे टाइप बनाते हैं, लेकिन ब्रेसेस लगते हैं और उसमें हम कोई भी मतलब डाल सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 और कोई भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डाल देते हैं। तो वो हमारा एक डेटा टाइप बन गया इनम में। सपोज हम लोग डेज लिए, इनम डे, फिर हमने ब्रेसेस में लिए मंडे ट्यूसडे थर्सडे, ठीक है, इस तरीके से ले लिया। तो ये हमारा एक डेटा बन गया जो क्या कंटेन करता है, जो एक्चुअली में डेज कंटेन करता है, ठीक है। अब हम इस डेटा टाइप को अपने कोड में यूज कर सकते हैं। कोड में कैसे यूज करेंगे कि लाइक मैंने उसको किस नाम दिया था, उसको मैंने डे टाइप का दिया था, इनम डे इक्वल्स टू मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब मैं उस डे टाइप को अपने प्रोग्राम में लिख सकती हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगी, डे इनम लिया और मतलब डे टाइप का वेरिएबल लिया, मतलब अब डे मेरा वो हो जाएगा, डेटा टाइप हो जाएगा। जैसे इंटीजर मेरा डेटा टाइप था, अब मेरा डे हो जाएगा डेटा। मैं करूंगी डे टाइप का, मैंने वेरिएबल लिया डी इक्वल भी लिख दिया डे या मतलब मंडे या ट्यूसडे। तो अगर मैं प्रिंट जाके लिखूंगी इस डी को तो वो क्या करेगा, इंडेक्सिंग देगा कि मेरे जो डी इक्वल टू ट्यूसडे था तो उस इनम जो मैंने डे डिक्लेयर किया था उसमें ट्यूसडे किस इंडेक्स पर था, किस इंडेक्स पे था ट्यूसडे हमारा, हाँ 1 इंडेक्स पे था। इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 1 इंडेक्स पे था तो इट विल प्रिंट 1, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम अपना ओन डेटा मतलब अपना ओन डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं और उस डेटा टाइप में हम कुछ वैल्यू दे सकते हैं।
ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड, मतलब कुछ समझ में आया हो। तो थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में और लेंगे। अच्छा, जब हम एरे बताएंगे तब अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा ये। एक बिटवाइज ऑपरेटर का था डाउट कि बिटवाइज ऑपरेटर कैसे ऑपरेट करते हैं। देखो, कोई एक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको बिटवाइज में मैंने कन्वर्ट कर दिया 1001, वाई है उसको कन्वर्ट कर दिया 1110, ठीक है। तो उनके बेस पे अब मैं बिटवाइज और कर रहा हूँ। बिटवाइज और मतलब और गेट पढ़ा होगा ना, कि अगर दोनों इनपुट 1 हो तब भी 1 होगा, या फिर इन दोनों में से कोई भी 1 हो तब भी 1 होता है, ठीक है, ट्रू होता है। तो बिटवाइज और कर रहा हूँ अगर मैं, और 1 होगा, 0 और 1 इन दोनों में से कोई भी ट्रू है तो 1 होगा, 0 और 1 ये भी 1 होगा, 1 और 0 ये भी 1 होगा। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स ये होते हैं कि उनको पहले कन्वर्ट कर दिया जाता है बाइनरी फॉर्म में, उसके बाद उन पे बिट बाय बिट ऑपरेशन होता है, ठीक है। अगर दोनों का साइज डिफरेंट हाँ, है, ठीक है, तो 0 मान लेते हैं इसकी जगह, ठीक है। लाइक आप लोगों ने अगर वो पढ़ा हो कभी, एंड गेट पढ़ा हो, और गेट पढ़ा हो, तो मतलब उसमें लाइक अगर आप बिटवाइज एंड करोगे तो एंड में क्या होता है कि अगर कोई भी मतलब दोनों अगर सेम है तो इट विल रिटर्न ट्रू। मतलब अगर दो इनपुट आपके सेम है देन इट विल रिटर्न ट्रू। ऐसे ही इसमें होता है कि अगर दो बिट्स सेम हैं तो नीचे आपका क्या आएगा, आंसर में 1 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हर एक बिट कंपेयर इसमें, जैसे आपने अगर फिर 5 डाला और 7 डाला एक वेरिएबल में, ए में डाला 5, बी में डाला आपने 7, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, ए और फिर ये जो साइन बन रहा है ए एम्परसेंड बी, तो ये एक्चुअली में करेगा क्या, पहले इस 5 और 6 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली 1 0 1 इस तरीके से अपने फॉर्म में आएगा 5 और 6। उसके बाद उस पूरे नंबर की हर एक बिट इस 6 वाले की बाइनरी फॉर्म से कंपेयर होगी। उसके बाद वो आउटपुट में जो आंसर आएगा उसको भी वो कन्वर्ट करेगा कि उस जो वो कोड में बन के आएगा, सपोज कुछ भी आया 1001 इस तरीके से आया, उसके बाद वो कन्वर्ट करेगा कि वो जो एक्चुअली में बाइनरी फॉर्म है नंबर को रिप्रेजेंट करती है, तो वो फिर नंबर आपको शो होगा। ओके, ये मैंने एग्जाम्पल एंड वाला लिया, बिटवाइज एंड का एग्जाम्पल लिया। ऑल ओवर जो आपने ए और बी में नंबर लिए 5 और 7, उसको पहले वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर वो बाइनरी फॉर्म में आपको जो एंड ऑपरेटर है वो लगेगा, एंड ऑपरेटर लगेगा तो वो एक बाइनरी फॉर्म का ही रिजल्ट देगा। फिर वो जो बाइनरी फॉर्म है वो आपकी कन्वर्ट होगी एक्चुअल से रिलेटेड जो आपके डेसिमल नंबर है। हेलो, नहीं समझ में आया क्या? बाय द वे ये जो कोई नेक्स्ट सी क्लास होगी ये विद इन दिस वीक ही होगी, ठीक है, 3 to 4 days बाद, ठीक है। तो शेड्यूल वो हो जाएगा ग्रुप पे पोस्ट, ठीक है, और गूगल क्लासरूम पे भी हो जाएगा। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू जॉइन गूगल क्लासरूम फॉर दीस असाइनमेंट्स, क्योंकि वहाँ टाइम टू टाइम काफ़ी कोड्स, नए नए रिसोर्सेज एंड कोड्स भी हम पोस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये वाले कोड्स भी वहीं पे आ जाएंगे। और Sir, so please send the link of that group. ग्रुप गूगल Google क्लासरूम, Classroom. Yes, sir. सो यू नीड टू बी मेंबर। you have registered? हाँ, I'm not registered till now. So please register yourself first in the AMU Robo Club website. Then you get the email or some notification to join the Google Classroom. Then you can add from here. But Okay. first you have to register yourself. ठीक है, And तो वहीं पे आ जाएगा। हाँ, okay. मैम मुझे भी एक डाउट पूछना था। Yes, गीतांजलि। मैम जैसे हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और मतलब डेफिनेटली किसी ने डिजाइन ही किया होगा, ह्यूमन ने, तो मतलब उन्हें कैसे थॉट आया कि मतलब जो कंप्यूटर है या कंपाइलर वगैरह है वो हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसे नहीं समझ पाएगा और उसे किसी इस तरह की लैंग्वेज की जरूरत है। तो राधिका, कैन आई टेक दिस डाउट? लाइक Yes, yes. देखो गीतांजलि, द थिंग इज 10 फॉर्म में, ठीक है, होता है 10 फॉर्म में कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो इफ यू वांट, तुम एक बात बताओ, 10 फॉर्म में कोई हमें इंस्ट्रक्शन देना है कंप्यूटर को कि दो नंबर्स को ऐड करो, तो 10 फॉर्म में अगर तुम लिखो ना ये वाला कोड,
उसकी लैंग्वेज में अगर बात करो कंप्यूटर की, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं, वो कोड लिख के भी देख लेना, वो वर्क कर जाते हैं कोड, ठीक है। बट द थिंग इज एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशंस में 1-0 के फॉर्म में नहीं होते। मतलब इंटरेक्शन नहीं हो सकता, इतना बड़ा इंटरेक्शन जितना मैं कोड लिख रहा हूँ, ये सब 1-0 फॉर्म में इम्पॉसिबल है करना, सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। तो इनिशियली लैंग्वेज, सबसे फर्स्ट लैंग्वेज कंप्यूटर के टर्म्स में यही वाली थी, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसी से हम कोड्स कर सकते थे, ठीक है। अब उसके बाद जो लेकिन ह्यूमन इंटरेक्शन करना था, ह्यूमंस तो बाइनरी कहाँ तक हम लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कोड लिख लेंगे 2 नंबर्स को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, लेकिन हमें आगे रिक्वायरमेंट हुए, तो उस वजह से कुछ ये जो इनको जो है कुछ स्टेटमेंट्स बना दिए गए जो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हों, ठीक है, और वो पीछे क्या वर्क कर रहे हैं, वो एक उससे इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। तो मतलब ये फॉर एग्जांपल अल्टीमेटली जो ये जो स्टेटमेंट्स है ना, एंड ए, ये सब इनको बाइनरी में ही कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सबको, जैसे मैंने बताया ना टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में, तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ जो है बाइनरी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो अभी एक और बार डाउट क्लियर करना है, एग्जैक्टली यही था ना? यस सर। लाइक लैंग्वेजेस का ओरिजिन यहीं से हुआ कि हमें इंटरेक्शन ह्यूमन के अकॉर्डिंग करना था, ठीक है। तो उस वजह से बाद में फोर्ट्रान लैंग्वेज आई, काफ़ी लो लैंग्वेजेस आई, ठीक है। तो बट उसी तरह मतलब उनका इवोल्यूशन हुआ, जैसे पाइथन आई, पाइथन काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल है, मतलब तो उसमें तो इस वजह से वो काफ़ी स्लो भी चलती है, ठीक है। बाइनरी जो है वो फास्टेस्ट लैंग्वेज है, इस वजह से अगर हमें कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ रहा है मशीन कोड में, हम डायरेक्टली उससे फेस टू फेस बात कर रहे हैं 1-0 के फॉर्म में, तो वो इतनी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट लैंग्वेज है। फिर उससे ऊपर लेवल पे थोड़ी आ जाती है सी लैंग्वेज और ये सब, इन पे काफ़ी हमें बताना पड़ता है कंपाइलर को कि यहाँ पे मैं मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ, हर चीज़ डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो दैट्स वाई ये थोड़ी सी स्लो है बाइनरी से, लेकिन सबसे ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। इस वजह से पाइथन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि शाम जैसे एट इवनिंग में जो सेशन होगा पाइथन में, उसमें देखना कि उसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं चाहिए होता है, इंट वगैरह कीवर्ड बाय डिफॉल्ट वो पाइथन काम करता है अपना, ठीक है। वो खुद अज्यूम करता है कहाँ पे मेमोरी फ्री है, उसके अकॉर्डिंग वो करेगा अपना एलोकेशन मेमोरी, हमें कुछ नहीं उसमें करना पड़ता। तो दैट्स वाई इट इज़ स्लो एज वेल, स्लो चलती है बट बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है ह्यूमन से, ठीक है, बिल्कुल इंग्लिश टाइप है। तो इस तरह ओरिजिन हुआ है, तो ये रीज़न था कि हमें बाइनरी से उसमें स्विच करना पड़ा, और ठीक है। और कोई डाउट? कोई भी टाइप का जनरल प्रोग्रामिंग डाउट? लाइक कुछ लोग फंक्शन के बारे में बहुत पूछ रहे थे कि मेन फंक्शन क्या है, रिटर्न एंड ऑल। तो मैं एक बेसिक बता दूं कि जितना आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। लाइक हम जैसे वेरिएबल है, इंटीजर ए, इंटीजर व्हाटएवर, तो हम एक वेरिएबल का एक डेटा टाइप दे रहे हैं। लाइक ए इंट दे रहे हैं, किसी को कैरेक्टर दे रहे हैं, ठीक है, किसी को स्ट्रिंग दे रहे हैं, ऑल दैट फ्लोट दे रहे हैं। ऐसे ही फंक्शन, हर एक फंक्शन का कोई ना कोई डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेन फंक्शन है, तो इस मेन फंक्शन का डेटा टाइप है आपका इंट, ठीक है। और जो इंट डेटा टाइप जो होता है, मतलब ये एज अ रूल समझ लो कुछ भी, लाइक अगर कोई चीज इंट है तो ऑब्वियसली इट शुड रिटर्न इंट, ओके। लाइक इफ यू आर राइटिंग इंटीजर ए, देन द प्रिंट एफ में कर रहे हो %e फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा रहे हो, देन इट इज ऑल्सो गिविंग सम इंटीजर वैल्यू। Similarly, for the function, if you are writing integer main, then it should return something, and it should return something. It should return an integer. ठीक है, तो आप अगर कुछ रिटर्न करने को नहीं है, then you can simply write return 0.
कंपाइलर तभी स्टॉप करेगा ना, आपका कंपाइलर 0 एरर दिखाएगा कि अरे इन्होंने तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप दिया है, बट दे आर नॉट रिटर्निंग सम इंटीजर। ओके, सिमिलरली अगर आपको इसको अवॉइड करना है कि यू डोंट वांट टू यूज रिटर्न 0, ठीक है, तो यू कैन यूज void टाइप. Void is also a kind of data type where you don't need to return anything. You can simply write your operations of printing, scanning and all that. This is मतलब ये इतना है जो आपको अभी समझ आ सकता है। अगर हम आपके आगे एक्सप्लेन करेंगे तो यू विल नॉट गेट इट। फिर हम वाई, हाँ ये क्वेश्चन है कि वाई वी आर रिटर्निंग 0। Am I audible? Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो 0 है इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, लेकिन जब आपको एग्जाम्पल से बताएंगे यू कैन रिटर्न एनीथिंग ऑल्स, मतलब आप कुछ और भी चीजें रिटर्न कर सकते हो, जरूरी नहीं है 0 रिटर्न करो। लेकिन अभी वो चीज हम अभी नहीं बता रहे, वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। आई होप सो यू गेट सम नॉलेज अबाउट कि व्हाई वी आर यूजिंग इंटेंट वॉइड एंड रिटर्न टाइप स्टेटमेंट। ओके, एक डाउट है, वो ऑब्जेक्ट कोड, राइट? तो अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट कोड, हाँ ऑब्जेक्ट कोड, टेक इट। हाँ, ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली जो कंपाइल हो जाती है ना, जैसे मैंने बताया ट्रांसलेट होती है मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो सीपीयू जो वर्क करते हैं ना, वो किस पे वर्क करते हैं? कंप्यूटर 1 और 0 पे। तो वो 1 0 में जब कंपाइल हो जाती है फॉर्म, तो उसे ही ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ठीक है। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड में टाइप कर रहा हूँ, सोर्स कोड होता है एक सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। सोर्स कोड ये हमारा जो कोड लिख रहे हैं हम, ये इंट ए एंड ये सब, ठीक है, तो ये हमारा सोर्स है। जब उसे कंपाइलर कंपाइल कर देता है 1 और 0 के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, जब वो मशीन रीडेबल हो जाएगा तो उसे ही ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ठीक है, 1 और 0 के फॉर्म में। उसके बाद वो गेट मतलब सो फार सो गुड है उसके लिए, इन सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए 1 और 0 के फॉर्म में, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट कोड। Object code is like middleware between the source code and the binary 0 1 code, 0 1 form. Okay. And yes, one more thing. आज की क्लास तो काफी मतलब ऐसी थी कि थोड़ी, but from next class we are going to code and then learn. Okay, so please register yourself for more classes in C. You will be learning C++, Python, PCB designing, MATLAB, and एक second. SolidWorks in web development, sensor and their interfacing, motor drivers and relays, intro to MCU, embedded C, etc.